हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेसन नंबर 7 को देखते हैं। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हाईलाइट किया जाएगा। सो लेसन नंबर 7 का नेम है लेंसेज। इसमें कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। इसे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के सभी पॉइंट को आप बाहर रखिए, ये एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मीन्स एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चन से बनते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, लेंसेज क्या होता है। यहाँ पे डेफिनेशन को हाईलाइट किया गया है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं। बट इसको बाहर इसको पढ़ लीजिए, बट जो क्वेश्चंस पूछे एग्जाम में उसके बारे में बताते हैं। यहाँ पे पहले क्या है, अ लेंस इज ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय द टू सरफेस एंड द लेंस विच हैज टू स्फेरिकल मिरर्स स्फेरिकल सरफेस विच आर पफ्ड आउटवर्ड इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस एंड डबल कॉन्वेक्स लेंस. This lens is thicker near the center as compared to edges. Concave lens का definition: the lens with the both surface spherical or inside is called concave or double concave lenses. This lens is thinner at center or as compared to its edges. Here types of आप यहाँ पे देखेंगे types of lenses है, जो ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं बट आपको नॉलेज में होना चाहिए। जैसे आप पे देख रहे हैं कई टाइप के आपको दिए हैं, बाई कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, पॉजिटिव मिनिस्कस, बाई कॉन्केव, प्लेनो कॉन्केव एंड निगेटिव मिनिस्कस। सो इतने टाइप के और लेंसेज है, टाइप्स ऑफ लेंसेज। चलो आगे देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको हम ज़्यादा किया गया उसको ज़्यादा ध्यान देंगे, और जो इम्पोर्टेंस नहीं है एग्जाम के व्यू से, जो आपको नॉलेज की ज़रूरत है वो ओनली हाईलाइट किया गया है। सेंटर ऑफ कर्वेचर हाईलाइट आप पे पढ़ सकते हैं क्या होते हैं। द सेंटर्स ऑफ स्फीयर हुज पार्ट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ लेंसेज आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंसेज एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर रिप्रेजेंटेड बाय C1 एंड C2. सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस R1 R2 ऑफ द स्फीयर हुज पार्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ लेंसेज आर कॉल्ड रेडाई ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंसेज. द इमेजिनरी लाइन passing through both center of curvature is called principal axis of lenses. Next का optical center, the point inside a lens on the principal axis through which light rays passes without changing their path is called optical center of lenses. Next focus, this is important. optical center आपको important है but definition नहीं पूछा जाएगा. focal length is important. Here convex lens, focal length of convex lens and focal length of concave lens. So first one, when light rays parallel to the principal axis are incident on convex lens, this is convex lens, they converge to a point on the principal axis. This point is called principal focus of lenses. And for concave lens, rays traveling parallel to principal axis of concave lens diverge after refraction in such way that they appear to coming out a point on the principal axis. This point is called principal focus of concave lenses. There are two focus, so focus is f1 and f2 in one lenses. So focal length, okay, the distance between optical center. Next, focal length. The distance between optical center and principal focus of lens is called focal length. नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं रे डायग्राम फॉर रिफ्रैक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन, इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंसेज। सो हियर सम रूल, लॉ ऑफ, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राइट द रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। सो या व्हाट इज रूल टू फॉर्म इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस। सो यहाँ पे 3 रूल्स है। फर्स्ट रूल नंबर 1, when the incident rays is parallel to principal axis or refracted rays passes through the principal axis. Here you can say this is a principal axis and incident ray which is parallel to principal axis, and after reflection it passes through the second focus. So this is first rule.
if any line, any light rays which parallel to principal axis and after reflected it will pass through the focus. Second rule opposite of first rule, inverse of first rule. Here if any incident ray which is passes through the focus, refracted rays will passes parallel to the principal axis. Written as here, when the incident ray passes through the principal focus, the reflected rays, second rule. This is inverse of first rule. So यहाँ पर देखते हैं, when the incident ray passes through the principal focus, the refracted rays is parallel to principal axis. Third, when the incident ray passes through the optical center of lenses, it passes without changing its direction. There are three rule important है, पूछे जा सकते हैं. फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इमेज कैसे फॉर्म होती है. हेयर आप यहाँ से रीड कर सकते हैं, यहाँ पे मेथड दिया है, यहाँ से आता है कैसे कैसे इसे फॉर्म किया गया है. सो नेक्स्ट ये पॉइंट आपको बाहर रखना है. अब पोजीशन कहाँ पर रहेंगे, सपोज पोजीशन इन्फिनिटी पर है, सो इमेज कहाँ पर रहेगा, फोकस रहेगा. साइज ऑफ इमेज पॉइंट इमेज एंड रियल इन्वर्टेड होगा. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो टेबल है इंपॉर्टेंट है. चाहे आप बाइट कर सकते हैं, अदरवाइज आप रे डायग्राम को ड्रॉ करके आप इसको. नेक्स्ट टॉपिक, लेंस फॉर्म बाय द कॉन्वेकेव लेंस. यहाँ पे दो पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, इसके फॉर्मूले जो रूल जो है, व्हेन द इंसिडेंट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, refracted rays when extended backward through the passes through the focus, and second, when the incident rays passes through the focus, refracted rays parallel to the principal axis. यहाँ पे दो ही पॉइंट मीन्स दो ही रूल अप्लाई होंगे टू ड्रॉ द इमेज. कॉन्केव लेंस में इमेज को ड्रॉ करने के लिए ओनली 2 रूल की ज़रूरत होती है, जबकि कॉन्वेक्स में 3 रूल की नीडेड होती है. इसे यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब भी कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं. ओके, फर्स्ट वन इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पे रहेगा या बैटर को इन्फिनिटी पे रहेगा, तो जो इमेज बनेंगे ऑन फर्स्ट फोकस F1 बनेगा और इमेज साइज पॉइंट इमेज होगा, वर्चुअल इरेक्ट होगा. इसमें ध्यान रखिए कि कॉन्केव में वर्चुअल इरेक्ट ही होता है. हेयर सेकेंड, एनीवेयर बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ओ एंड इन्फिनिटी. और इसके इन्फिनिटी को छोड़कर कहीं पर भी रहेगा, तो जो इमेज बनेंगे, इमेज फॉर्म बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस and size of image will be small compared than object. तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक. दिस इज इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन, ये भी एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं. सो साइन कन्वेंशन यहाँ पे दिख रहा होगा कि जब हम मेजर राइट साइड में करते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट साइड मेजर करते हैं निगेटिव, ऊपर हम मेजर करते हैं तो भी पॉजिटिव लेंगे, और नीचे कुछ मेजर कर रहे हैं निगेटिव लेंगे. ओके, जैसा इसका देखो यहाँ पर नीचे बॉक्स में दिया गया है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं. 1 2 3 4 हाईलाइट किया गया 5. तो यहाँ पे दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं. ये डेफिनेशन, ये एक्सप्लेनेशन है साइन कन्वेंशन का. साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा. दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेंस फॉर्मूला, ये भी पूछा जाता है. राइट अबाउट द लेंस फॉर्मूला. सो आपको लेंस फॉर्मूला के बारे में लिखना होगा. लेंस फॉर्मूला, तो लेंस फॉर्मूला इतना लिखेंगे, द फॉर्मूला शोइंग रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, डिस्टेंस ऑफ इमेज वी एंड फोकल लेंथ एफ इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला. उसके बाद फॉर्मूला लिख देंगे. इतना ही आपको लिखना है लेंस फॉर्मूला. दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट. जैसा आपको ने बताया हुआ फिर से हम बता रहे हैं. आपको जैसे बता रहे थे, इसमें जो इम्पोर्टेंट बताया लेंस से, यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट स्टार्ट हुआ था. एक बार फिर से हम लोग इसके दिखा दे रहे हैं. लेंस लॉ ऑफ ये इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस, दिस रूल इज इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट ये टेबल था वो इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट कॉन्केव लेंस से कैसे बनता है ये भी इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट का ये जो टेबल है ये भी टेबल इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट साइन कन्वेंशन आल्सो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट. लेंस फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. नेक्स्ट है मैग्नीफिकेंस. इस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी इस पर डेफिनेशन भी पूछा जाता है. सो ये आप याद रखो, मैग्नीफिकेशन H2/H1 होता है, V/U होता है. सो ये डेफिनेशन अपने आप लिख सकते हैं. सो मैग्नीफिकेशन ड्यू टू लेंस इज द रेशियो ऑफ H2. H मीन्स हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट.
सो ऐसा लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सेम है यहाँ पे देखते हैं वी यू, वी क्या डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड यू क्या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। शेयर यू का राइट मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ये फॉर्मूला आप दोनों लिख सकते हैं, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट है पावर ऑफ लेंसेज, दिस आल्सो इम्पॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा द कैपेसिटी ऑफ लेंसेज, द कैपेसिटी ऑफ लेंसेज, द कैपेसिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं द कैपेसिटी लेंसेज कन्वर्ज या डाइवर्ज इंसिडेंट रेज कॉल पावर, द पावर इज इनवर्स ऑफ द फोकल लेंथ। याद रखिएगा जो पावर होता है वो फोकल लेंथ का इनवर्स होता है, बट फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर। यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर क्या होता है डायमीटर होता है। ये सब क्या होते हैं 1 मार्क्स से पूछे जा सकते हैं। 1 डायमीटर क्या होते हैं 1 एम। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, सो यहाँ पे देख लेते हैं इफ 2 lenses with focal length f1 and f2 are kept in the contact to each other, then the combination has effective focal length will be 1/f equal to f1, 1/f1 plus 1/f2। सो कितने भी फोकल लेंथ हो सबको हम ऐड करेंगे तो टोटल फोकल लेंथ के इक्वल होंगे। यहाँ पे एग्जांपल दिया, एग्जांपल आप लोग पढ़ लीजिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो भी बोर्ड में एग्जाम आते हैं, जो भी बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं उसमें आप ध्यान रखिएगा एग्जांपल से बेस्ड ही क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, सो आप इसको जरूर ऐड करिएगा। नेक्स्ट क्या आते हैं आइज। आइज के आपको डायग्राम ड्रॉ करने हैं, उसमें कितने कितने पार्ट लिखे, कौन कौन से पार्ट है उसको आपको ड्रॉ करना है और उसको आपको लिखना है। एंड देन उसके यहाँ पे डेफिनेशन और डेफिनेशन एंड डेफिनेशन आपको लिखना है और उनके फंक्शन को लिखना है। so, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं क्या डेफिनेशन देख रहे हैं, फर्स्ट वन क्या है कॉर्निया। सो दिस इज वेरी थिन ट्रांसपेरेंट कवर ओके मेम्ब्रेन ऑन ह्यूमन आई, दिस कॉल्ड द कॉर्निया। इसके फंक्शंस क्या होते हैं, जो डेफिनेशन है उसको हाईलाइट किया गया, जो फंक्शन है उसको अंडरलाइन किया गया। लाइट इंटर द आई थ्रू इट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंसिडेंट लाइट is refracted inside the eye at outer surface of cornea. There is next second definition, the dark fleshy screen behind the cornea is called iris. iris के वर्क क्या होते हैं, the color of iris is different for different person, सभी अलग अलग पर्सन में अलग होता है। नेक्स्ट क्या दिया, दिस इज स्मॉल होल ऑफ चेंजिंग डायमीटर ऑफ सेंटर ऑफ द आइरिस विच इज कॉल्ड द पेपल। ये कहता है आइरिस की जो सेंटर है, सेंटर के डायमीटर को कम या ज़्यादा कहता है, इसे हम पेपल कहते हैं। पेपल कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इनसाइड द आई, मीन्स आई को लाइट को कंट्रोल करता है, कितनी मात्रा में लाइट आई के इनसाइड जाना चाहिए उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट द लाइट फॉलिंग ऑन द आईज इज टू ब्राइट, पेपल कॉन्ट्रैक्ट वाइल इट इफ द लाइट इज डिम इट वाइडन। नेक्स्ट डेफिनेशन, ऑन द सरफेस ऑफ आइरिस there is bulged transparent layer, there is a double convex transparent crystalline lenses okay just behind the pupil. The lens provides a small adjustment of focal length to focus the image. The lens create real and inverted image on an object on the screen inside the eyes, and the screen is made of the eye sensitive cell, this is called the retina. These cells get excited when the eye falls on them and generate electric signal. These signal conveyed to the brain or through the optic nerves. Later brain analyzes the signal and convert them in such way that we perceive the object as they actually are. सो ये क्या आई के बारे में लिखा गया, आई में कौन कौन से पार्ट होते हैं, उनके वर्क क्या होते हैं और आई का इमेज कैसे बनता है, यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा गया इमेज आई पर कैसे फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आई क्या डेफिनेशन, इसको आपको लिखना जरूरी है, ये आपको डेफिनेशन भी लिखना है और इसके एक्सप्लेन भी करना है। नेक्स्ट यार इसको कहते हैं अकोमोडेशन। अकोमोडेशन डेफिनेशन क्या, द कैपेसिटी ऑफ द लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ एज पर नीड इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। ध्यान रखिए दिस इज पावर ऑफ अकोमोडेशन। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, याद रखिएगा नॉर्मल आई को कोई चीज़ को क्लियर देखने के लिए मिनिमम डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। दिस इज आल्सो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नियर
sightedness myopia, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन हाईलाइट किए गए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट है। इन दिस केस द आई कैन बी सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट अपियर इन डिस्टेंट। Okay, there are two reason for this defect. First reason, the curvature of the cornea and eye lenses increase. The muscles near the lens cannot relax, so that converging power of lens remains large. Second point, the eyeball elongates so that distance between lens and retina increases. डायग्राम भी आपको बांट रखना। दिस इज ओके, नियर बाई ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली। तो ऐसा डायग्राम जब हमारा ऑब्जेक्ट हमारे कोई इफेक्ट नहीं, आँख में कोई इफेक्ट नहीं है। मायोपिया होगा तो क्या होगा, यहाँ पर रेटिना है, याद रखिएगा रेटिना के पहले बनता है। ये भी क्वेश्चन आपके आते हैं। इमेज फॉर्म बिफोर द रेटिना इन फ्रंट ऑफ रेटिना बिफोर द रेटिना व्हेन इफ एनी आइज सफर फ्रॉम मायोपिया। जब भी हम कॉन्वेक्स लगाते हैं, दोनों डायग्राम याद रखिएगा। जब कॉन्केव लगाते हैं तो यहाँ पे क्या होते हैं, इसको डाइवर्ज करके रेटिना पर इमेज फॉर्म होता है। इसको इफेक्ट करने के लिए, इसको करेक्ट करने के लिए याद रखिएगा कि हम किसका कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं, कॉन्केव लेंस को प्रॉपर फोकल लेंथ। नेक्स्ट वन फॉर साइडनेस, इसका अपोजिट होता है, जितना भी हम पढ़ा उसके अपोजिट ही यहाँ पे लिखना है। दिस डिफेक्ट ह्यूमन आई कैन डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट। उसे आपने देखा था, उसने क्या किया था कि नियर बाय ऑब्जेक्ट को देख सकते थे, डिस्टेंस को नहीं देख पाते थे। यहाँ पे क्या डिस्टेंस को देख सकते हैं क्लियर, बट पास को नहीं देख सकते। टू रीजन आपको दिख रहा होगा, उसमें इंक्रीज था, यहाँ पर सभी क्या डिक्रीज हो जाएंगे। और इसको हम कॉन्वेक्स लेंस से इम्प्रूव, इसको हम कॉन्केव लेंस से करेक्ट कर सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस से करेक्ट कर सकते हैं। हाइपरमेट्रोपिया को हम, इस इफेक्ट को हम किससे, कॉन्वेक्स लेंस से करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रेसमोपिया। जनरली द फोकसिंग पावर ऑफ आइज लेंस डिक्रीज विद द एज, द मसल्स नियर द lenses lose then ability to change focal length of lenses, the near point of lenses shift further from eye, because of this old person cannot see nearby object. Sometimes people suffer from the nearsightedness as well for sightedness. In such a case, focal lenses are usually required to correct the defect. In such lenses, the upper part concave lenses and correct the nearsightedness, and the lower part is convex lens correct the farsightedness. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अपर एंड साइड दैट नॉट इम्पॉर्टेंट। यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इंपॉर्टेंट, आप पढ़ लीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप इसको टेक्स्ट बुक में हाईलाइट करिए, कभी ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखिएगा ओनली आपको हाईलाइटेड पॉइंट पढ़ना है। यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इन सिंपल माइक्रोस्कोप। सेकेंड क्या आप लिखेंगे, यहाँ पे एक जो है इसको आप देख लीजिएगा कि जो वॉच रिपेयर होते हैं वो कॉन्वेक्स लेंस का यूज क्यों करते हैं। सो यहाँ पे हो जाएगा, और कॉन्वेक्स लेंस स्मॉल फोकल लेंथ प्रोड्यूस ए वर्चुअल एयर एंड बिगर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये सब नहीं लिखना। सच लेंस इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप। डेफिनेशन ऑफ माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। Okay, one can get 20 times larger image of the object using the such microscopes. Okay, these are used for watch repair, testing precision से। ये आपको डेफिनेशन, एक आपको रीजन होगा, आप याद रखिए, इसको लिख सकते हैं। अगर ऐसा पूछा जाए कि वॉच रिपेयर कौन सा लेंस यूज करते हो, क्यों, तो आपको कैसे करना होगा। नेक्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट टेलीस्कोप एंड नेक्स्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट आता है परसिस्टेंस ऑफ विजन। ओके, यहाँ हाईलाइट पॉइंट किया गया है, आपको यहाँ पे लिखना है। द इमेज रिमेन्स इम्प्रिंटेड और माइंड और रेटिना फॉर 1/16 सेकेंड आफ्टर द इमेज रिमूव्ड। द सेंसेशन ऑफ रेटिना परसिस्ट वाइल दिस इज कॉल्ड द परसिस्टेंस ऑफ विजन। जब भी हम कोई चीज़ देख रहे अचानक वो चीज़, जो ऑब्जेक्ट कहीं दूर लेके जाते हैं, तो भी उसके जो पिक्चर से हमें आंखों के सामने दिखता है। सो दिस इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन। ओके, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख लीजिएगा। द रेटिना इन आवर आइज इज मेड ऑफ मेनी लाइट सेंसिटिव सेल and these cells are shaped rod like and like a stone. The rod like cells respond to intensity of light and give information about the
brightness and dimness of object to the brain. The conical cells respond to the color and give information about the color of the object to the brain. तो याद रखिए इसका वर्क क्या है, रॉड सेल का वर्क क्या है और ग्रीन सेल का वर्क क्या है। सो ये लेसन कंप्लीट होते हैं, इसके बाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।